एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, द कंप्लीट नोट्स ऑफ दिस चैप्टर दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. इट्स माय ओन हैंड रिटन नोट्स, प्लीज गो एंड चेक इट आउट. इट विल रियली हेल्पफुल फॉर यू बिकॉज मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, दैट इज +2. ये आपका बना लेगा यहाँ पे बेटा MgCl2. यहाँ स्टेट मैं नहीं लिख रहा हूँ. अब देखो यहाँ पे दो एडिशनल चीज मुझे आपको समझाना है. लुक एट हियर, हाइड्रोजन उसके साथ कंबाइन करके बेटा एंड इट विल फॉर्म H2CO3. सी, हाइड्रोजन विल कम एंड कंबाइन विद CO3 एंड इट विल फॉर्म H2CO3. एज्यूम करो सिंपल सा कि एक ऐसी फैमिली है विच इज फाइनेंशियली वेरी वीक. ठीक है, फाइनेंशियली वीक है. सो व्हाट विल हैपन, no longer that family will be the united, ठीक है, या combined family अब वो नहीं रहेगी. Reason is that, you know, just mixing this lemon over here. So you all tell me what exactly the process right now I am doing. Again, the reaction जो यहाँ पे हुआ, the type of reaction that has taken place just right now, it is of the nature exothermic. Welcome to e-learning with Ankit. I hope your studies are going quite well and good. Today we are going to discuss about the properties of acid. Why I have chosen this topic? Because number of time question is being asked on this topic और students के mind में confusion होता है, वो रटते हैं इस चीज को, like acid इसके साथ react करेगा तो ये बनाएगा, if base is reacting with something तो कुछ ऐसा product बनेगा. Believe me, nothing as such. रटने की कोई जरूरत नहीं है. देखो पूरी तरीके से correlate करके with your first chapter I'll explain each and everything to you. And so without any further delay, चलो start करते हैं पहला topic. And सबसे important बात, the complete notes of this chapter that is acid base and salt is given in the description. It's my own handwritten notes, please go and check it out. It will be really helpful for you. चलिए start करते हैं. So we'll discuss about properties of acid. I'll discuss only chemical properties, not physical properties, right? So discussing about the first one, like properties of acid. So see, if I'm saying properties of acid, nothing as usual given in the textbook directly I'm going to right click कि भाई acid metal के साथ react करेगा तो ये बनाएगा, ऐसा बनाएगा, nothing. Just simply what I am doing, कोई एक acid का example pick किया. Let's say if I'm talking asking an example of acid from you, और कोई एक metal का example मैंने अपने side से लिया. तो for an example चलो यही काम करते हैं. I have taken one example of metal from my side. We know that zinc is a metal, हमने ले लिया यहाँ पे. अब देखो बेटा एक्चुअली गलती आप क्या करते हो, when you are writing zinc, हम सबको पता है मेटल एट द वेरी इंस्टेंट, उसी टाइम पे क्या करो, जस्ट वेरी इंस्टेंट डू राइट इट्स स्टेट एज वेल. आई एम यूजिंग द अनदर मार्कर सो दैट क्लियरली विजिबल हो आपको कि एग्जाम में आप गलती मत करना इस चीज को. ठीक है, ये हम लोग का यहाँ पे हमने लिख लिया सॉलिड स्टेट में. इट रिएक्ट्स विथ एनी एसिड, लेट से कोई एक एसिड हम लेते हैं, डाइल्यूट एसिड. लेट से इफ आई एम टेकिंग हियर H2SO4, राइट, I am taking here as a H2SO4. Again we know that acids है, until and unless we are not making its aqueous solution, जब तक हम इसका aqueous solution नहीं बनाएंगे ये react नहीं करेगा. So what we are taking, it's a aqueous solution. And let's see after the reaction what will be the product over here. अब देखो यहाँ पे हमें properties रटने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट चैप्टर से आपको कोरिलेट करके समझाता हूँ. देखो कैसे इस चीज को, we all know that, हम सबको पता है that acids जो metal है हम लोग के highly reactive होते हैं. ठीक है, now one can ask me the question, sir how you are saying that is metal are highly reactive. बेटा पहले चैप्टर में हमने पढ़ा है रिएक्टिविटी सीरीज, मेटल्स हमारे वहाँ पे टॉप सीरीज, टॉप ऑर्डर में है, मतलब टॉप कॉलम में है, तो दैट्स वाई दे आर रिएक्टिव. तो क्या करेगा यहाँ से जिंक हमारा या हाइड्रोजन को यहाँ से क्या करेगा, या डिस्प्लेस कर देगा. देखो ये समझने के लिए ऐसा, ठीक है, जिससे आपको चीज़ें ऐसा ना लगे कि मुझे रटवाई जा रही हैं चीज़ें. सो व्हाट विल हैपन, जिंक देखो यहाँ से इसको डिस्प्लेस कर दिया, सो इट विल फॉर्म ZnSO4, राइट. There will be the formation of zinc sulfate called as a ZnSO4. Again कोई भी चीज हम यहाँ पे मिस आउट नहीं करेंगे. मिस आउट इन द सेंस कि यहाँ पे हम स्टेट फिर लिखते चलेंगे. अगेन इट स्टेट विल बी एक्वस, राइट. आफ्टर दैट देखो अब यहाँ से हाइड्रोजन इवॉल्व हुआ हम लोग का, तो H2 विल राइट. वी ऑल नो दैट कि हाइड्रोजन हम लोग का गैसियस इन नेचर है, सो वी आर गोइंग टू राइट ओवर हियर गैसियस, एंड गैस इवॉल्व कर रहा है तो सिंबल मस्ट बी हियर. अब ये इक्वेशन पूरी तरीके से आपका कंप्लीट है. नो वन कैन से दैट कि गलत है आपका. ठीक, अब देखो अब यहां से रूल हमें क्या मिला, व्हाट कैन वी राइट ओवर हियर फ्रॉम दैट, कि कोई मेटल है एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, टू थिंग्स वी विल ऑब्टेन. उसी मेटल का एक सॉल्ट मिलेगा एंड विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन, with the evolution of hydrogen gas. So it does mean एक हमारे पास पहला नियम समझ में आ गया. The first rule we got to understood over here, like when metal reacts with acid they evolve hydrogen gas with the formation of a salt. तो इसको देखो कैसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में. In short form we can write over here like if it is a metal
reacts with acid, majorly it's a dilute acid, but concentrated will also give the reaction, so it will form salt. Remember what type of salt? उसी metal का salt होगा. तो in some of the textbook you may find it's written here metallic salt. Don't be confused, same वही चीज है. And there will be the evolution of hydrogen gas, so I'm just writing here hydrogen only, it will be understood क्योंकि हाइड्रोजन हम लोग का गैसेस इन नेचर होता है. तो देखो पहली प्रॉपर्टी हमें क्लियर हो गई. द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लियर टू अस, लाइक मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. ठीक है, अब आप ऐसा कह सकते हो कि सर एक ही एग्जांपल आप याद करके आए उसी से बता रहे हैं, तो ठीक है चलो एक दो एग्जांपल और डिस्कस करते हैं यहाँ पे. लेट अस सपोज अगेन आई एम टेकिंग हियर मैग्नीशियम and what it will be state over here, solid state, because it's a metal in nature. And this time I am changing the acid, I am taking here it's the HCl, it what states will be aqueous state. अब यहाँ पे देखो क्या होगा, सेम वही कॉन्सेप्ट. नहीं पता है एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, लेट से आप भूल गए हो, चलो कोई बात नहीं, पहला चैप्टर हमें लर्न है, हम वहीं से समझने की कोशिश करेंगे. मेटल, मैग्नीशियम मेटल है, हाईली रिएक्टिव है. व्हाट इट विल डू, इट विल डिस्प्लेस द हाइड्रोजन. ये हाइड्रोजन को इसने यहाँ से क्या किया, डिस्प्लेस किया. आफ्टर डिस्प्लेसिंग हाइड्रोजन इट विल कंबाइन विद द क्लोरीन, जस्ट बिकॉज मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, दैट इज +2. ये आपका बना लेगा यहाँ पे बेटा MgCl2. यहाँ स्टेट मैं नहीं लिख रहा हूँ, यू ऑल हैव टू राइट द स्टेट ऑफ दिस सब्सटेंस इन द कमेंट सेक्शन. आई विल गिव द हार्ट ऑफ दैट सो दैट यू विल बी श्योर दैट कि वो हम लोग का सही आंसर है. अब यहाँ से देखो हाइड्रोजन इवॉल्व कर रहा है बेटा. अभी मैंने बताया हाइड्रोजन गैसेस इन नेचर है, सो इट विल बी डायटोमिक H2 आप लिख रहे होगे बगल में अपवर्ड सिंबल. इट विल इंडिकेट कि हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो रहा है. ठीक है, फॉर्मेशन इवोल्यूशन ऑफ गैस मैंने टॉपिक पहले चैप्टर में आपको पढ़ा रखा है. इज दैट क्लियर? एक लास्ट और देखते हैं हम लोग. देखो ठीक है क्या करते हैं यहाँ पे, दिस टाइम आई एम टेकिंग द सोडियम एंड अब एसिड थोड़ा सा चेंज करते हैं, एक बार और एक एसिड चेंज करते हैं. ठीक है, सो दैट 3 अलग अलग एग्जांपल्स आप पढ़ सको. दिस टाइम आई एम टेकिंग एसिटिक एसिड CH3COH. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एसिड, सो एक्वस स्टेट विल बी हियर. This is called as a acetic acid and also called as a ethanoic acid. Some of the textbook you may find किसी sample paper में आपको क्वेश्चन ये देख सकता है, कंफ्यूज मत होना. 4th chapter when you will reading the carbons compound, इसका proper nomenclature आपको सिखाऊंगा. There you will get to know that how and why I am saying that it's a acetic acid. Okay, so what will happen again, it's the metal, what it will do, it will displace hydrogen. तो देखो ये क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को यहाँ से ये इस वाले हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा. सो डिस्प्लेस करेगा हाइड्रोजन, what it will form, it will form CH3CONA, right, and evolution of hydrogen gas. So yes, now its property is clear कि whenever any metal reacts with or when any acid reacts with, rather than I should say that कि when acid reacts with metal it forms salt with the evolution of hydrogen gas. ठीक, अब ये तो सिंपल सी चीज हो गई. इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे हमसे, देखो जो गैस इवॉल्व कर रहा है उसको हम टेस्ट कैसे करेंगे. सो वेरी इजी थिंग इज दैट कि गैस कैसे टेस्ट करेंगे, व्हेन यू आर बर्निंग मैच स्टिक इज प्लेस्ड, लेट्स से का टेस्ट ट्यूब है तो बर्निंग मैच स्टिक आप यहाँ पे ले जा रहे हो, अगेन इट विल बर्न विद द पॉप साउंड और कैंडल ऑल्सो यू कैन राइट. ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स वी हैव डन दिस थिंग इन द क्लास, सो यू ऑल मस्ट बी नोइंग. दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट प्रॉपर्टी, सो आई गेस दिस फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लियर टू यू. लेट अस डिस्कस द सेकंड प्रॉपर्टी. व्हाट हैपेंस टू द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ दिस properties of acid. Second one, see, we are discussing the second one property. Now this time what we am doing again, जैसा कि as we have discussed the first one property, कोई reactions में कोई property आपको पहले नहीं बता रहा हूँ. ठीक है, अदरवाइज वो बुक में भी आप ऐसे पढ़ लोगे. then what's the difference of me being here as a teacher. देखो क्या करते हैं, जैसे सिंपल आई एम राइटिंग ओवर हियर, कोई मेटल कार्बोनेट लेते हैं. लेट्स से आई हैव टेकन हियर Na2CO3 मेटल कार्बोनेट. ठीक है, सोडियम मेटल है, CO3 लगा तो कार्बोनेट हम लोग का, मेटल कार्बोनेट आई हैव टेकन Na2CO3 एंड इट इज बीइंग मेड टू रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि भाई हम लोग टॉपिक ही पढ़ रहे हैं हाइड्रो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, सो आई हैव टेकन दिस वन, राइट. अब अगेन फिर से वही चीज देखो. अच्छा, बिफोर दैट लेट मी राइट द स्टेट एज वेल. सो अगेन वी नो दैट इट्स एसिड्स एक्वस स्टेट विल बी हियर एंड Na2CO3 it may be solid also or it may be gas liquid aqueous solution also, both you can take. So what will happen here, say अगेन वी नो दैट नहीं पता है हमें प्रॉपर्टी क्या होता है, लेट इट बी, कोई बात नहीं, बट स्टिल वी कैन राइट बिकॉज पहला चैप्टर हमने अच्छे से पढ़ा है. सो व्हाट वी हैव रेड, व्हाट वी नो दैट कि सोडियम हम लोग का हाईली रिएक्टिव है, इट विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन एटम हियर फ्रॉम, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और एंड देन आफ्टर द क्लोरीन इज देयर, सो क्लोरीन के साथ कंबाइन करके ये आपका बना लेगा NaCl. ठीक है, अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो 2 सोडियम एटम है, इट्स ओके. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कंप्लीट, आफ्टर राइटिंग द कंप्लीट रिएक्शन आप बैलेंस करोगे तो आपको भी यहाँ पे 2 मिल जाएगा, दैट विल बी बैलेंस्ड. वो अनदर टास्क है हमारा. ये सॉल्ट बना, एक्वस स्टेट मस्ट बी देयर, राइट.
अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये हाइड्रोजन भी उसी समय यहाँ पे आएगा एट द सेम टाइम। देखो ये सब सारी चीजें एक्सप्लेन करने के लिए है, ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा मत समझना, ठीक है। हाइड्रोजन विल ऑल्सो कम हियर। सो व्हाट कैन आई से दैट, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, वेदर इट्स कॉम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट और वट एवर टाइप ऑफ रिएक्शन, डू लेट मी नो द कमेंट सेक्शन। ये किस टाइप का रिएक्शन है, ये फर्स्ट चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, ये आप बताओगे मुझे। हाइड्रोजन विल कम हियर एंड इट विल कंबाइन विद द CO3। अब देखो यहाँ पे दो एडिशनल चीज मुझे आपको समझाना है। लुक एट हियर, हाइड्रोजन उसके साथ कंबाइन करके बेटा एंड इट विल फॉर्म H2CO3। सी, हाइड्रोजन विल कम एंड कंबाइन विद CO3 एंड इट विल फॉर्म H2CO3। So at the starting of that chapter I have told you this H2CO3 is your weak acid, ठीक है, ये हम लोग का weak acid होता है बेटा, it's a weak acid, ठीक है। एक सिंपल सा एक इंसिडेंट बताता हूँ आपको, not an incident rather I should say that, not an incident, it's a fact also। आप एज्यूम करो सिंपल सा कि एक ऐसी फैमिली है which is financially very weak, ठीक है, फाइनेंशियली वीक है। So what will happen, नो लॉन्गर दैट फैमिली विल बी द यूनाइटेड, ठीक है, या कंबाइंड फैमिली, अब वो नहीं रहेगी। रीजन इज दैट, क्योंकि भाई पैसे की जरूरत है, भैया कहीं और जाएंगे, पिताजी कहीं और जाएंगे कमाने, हो सकता है मम्मी कहीं और जाए काम का कमाने, सो दैट कि जो एक्सपेंसेस है फैमिली को बियर कर सके। इट डज मीन जो फैमिली अभी कंबाइंड थी, एक साथ जुड़ के थी, अब वो डिसोसिएट हो गई, वो ब्रेक हो गई, ठीक है, बिकॉज इट्स वॉज अ वीक फैमिली। वीक इन द सेंस, आई एम टेलिंग इन द सेंस ऑफ फाइनेंशियल बेसिस, राइट। ऐसे याद रखना कि अगर जो वीक था वो टूट गया, ठीक उसी तरीके से याद रखना कि ये वीक एसिड है तो ये स्प्लिट कर जाएगा, ब्रेक डाउन कर जाएगा, टूट जाएगा। वो एग्जांपल याद रखना, कभी नहीं भूलोगे। सो इट विल ब्रेक डाउन। अच्छा, कैसे ब्रेक करेगा ये देख लो, H2CO3 है, इट विल ब्रेक, ये बीच से ऐसे यहाँ पे ब्रेक कर गया H2CO3। सो इट डज मीन H2CO3 आपका ये ब्रेक कर जाएगा। दो चीजों में ब्रेक करेगा हम लोग का, दो चीजों में ब्रेक करने के बाद मिलेगा। कैसे ब्रेक करेगा हम लोग का, देखो, इट विल गिव H2O एंड CO2। इट डज मीन व्हाट एडिशनल प्रोडक्ट यू विल ऑब्टेन हियर, यू विल ऑब्टेन H2O, वी नो दैट इट्स अ वाटर, तो लिक्विड स्टेट लिख दिया यहाँ पे। एंड देन आफ्टर इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सो अगेन इट कार्बन डाइऑक्साइड सो गैसेस इन नेचर, और अपवर्ड सिंबल लगाना मत भूलना यहाँ पे, राइट। तो देखो क्या समझ में आया हमें यहाँ से, व्हाट रूल वी कैन राइट। देखो रूल व्हाट कैन वी राइट, लाइक इफ देयर इज अ metal carbonate, it reacts with acid, three things you will obtain। देखो सबसे पहला salt you will obtain, then after you will obtain water, and then after you will obtain carbon dioxide, evolution of carbon dioxide gas। this is your second property of acid। ये acid की आपकी second property है। दिस इज कॉल्ड एज योर सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। फिर से एक बार रिकॉल कराते हैं, याद रखना, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल दो चीजें मिलेंगी, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, बट द सेम टाइम व्हेन एसिड रिएक्ट विद एनी मेटल कार्बोनेट, आई हैव टेकन सोडियम कार्बोनेट, आप कोई भी मेटल कार्बोनेट ले लो, इट विल गिव थ्री थिंग्स टू यू। सेम सॉल्ट फिर से मिलेगा वैसी तरीके से आपको, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे, क्या मैकेनिज्म है, दैट आई हैव एक्सप्लेन टू यू राइट नाउ। आई होप दिस वन इज क्लियर। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, बट दिस टाइम आई एम नॉट टेकिंग मेटल कार्बोनेट, आई एम टेकिंग मेटल बाइकार्बोनेट। तो देखो this time I am taking NaHCO3 and it is being made to react with, चलो एसिड भी चेंज करते हैं इस बार, H2SO4 ले लिया, कैसा एसिड, डाइल्यूट एसिड H2SO4। so what will happen, what product it will form, देखो again sodium highly reactive, it will displace hydrogen and it will form Na2SO4। why I am writing Na2SO4, still if you have a doubt कि सर आपने Na2SO4 कैसे लिख दिया in place of NaSO4, बताइएगा कमेंट सेक्शन में करिएगा। आई विल मेक अ प्रॉपर वीडियो ऑफ सोल्यूशन ऑफ दैट कि कैसे फॉर्मूला लिखते हैं, ऑफ कोर्स, बट इट इज आप 9th की चीज़ है अब। सो हाइड्रोजन देखो बेटा इसके साथ यहाँ पे आएगा एंड इट विल फॉर्म अगेन H2CO3 एंड वी नो दैट H2CO3 इज बीइंग अ वीक एसिड, ये स्प्लिट कर जाएगा, डिसोसिएट कर जाएगा, आपका आयनाइज हो जाएगा इवन, एंड इट विल गिव टू यू H2O एंड विद द एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। प्रॉपर स्टेट सिंबल वगैरह सब आप लिख लोगे, आई होप सो, ठीक है। याद रखना, अब वन कैन आस्क मी द क्वेश्चन कि सर फिर डिफरेंस क्या हुआ मेटल बाइकार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट पे। ओनली डिफरेंस इज दैट नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा यहाँ पे, व्हाइल यू विल बैलेंस इट, ठीक है। तो बैलेंसिंग आपका टास्क है, आप इसको करके देखना। सेकंड प्रॉपर्टी फिर से याद दिलाता हूँ कि जब व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट, थ्री थिंग्स यू विल ऑब्टेन, और सॉरी बाइकार्बोनेट आल्सो, इसको बाइकार्बोनेट बोलेंगे, जहाँ पे हाइड्रोजन लग गया, दिस वन इज कॉल्ड एज अ HCO3-, ये होता है बेटा आपका बाइकार्बोनेट आयन, सो इट्स अ मेटल बाइकार्बोनेट। अब मैग्नीशियम ले लेते, दे आर आल्सो द सेम प्रोडक्ट वुड हैव बीन ऑब्टेन्ड। याद रखना तीन चीजें मिलेंगी, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। आई होप दिस प्रॉपर्टी इज क्लियर, यू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट। वेरी सून वी विल डिस्कस द थर्ड प्रॉपर्टी। लेट अस सी द थर्ड प्रॉपर्टी अगेन एंड द सेम वे,
प्रॉपर्टीज पहले नहीं लिख रहा हूं, जस्ट ओनली आई एम राइटिंग अ सिंपल केमिकल इक्वेशन बेस्ड अपॉन दैट प्रॉपर्टी, या तो आपको खुद समझ में आ जाएगा या मैं लिख दूंगा. सो लेट अस सपोज फॉर एन एग्जांपल आई एम टेकिंग इन एसिड, कोई एक एसिड लिया, अगेन इफ देयर इज एन एसिड स्टेट विल बी एक्वस, राइट, एंड आई एम टेकिंग दिस टाइम एज अ बेस. सबसे कॉमन एग्जांपल बेस का कई बार आप पढ़ चुके हो, दैट इज NaOH. अगेन इस स्टेट विल बी एक्वस आई हैव टेकन. सो व्हाट विल हैपन, अगेन चीजें नहीं पता है हमको कि एसिड और बेस रिएक्शन होगा, क्या होगा, कैसे होगा. डू वन थिंग, एटलीस्ट वी नो दैट कि एसिड है हम लोग का, दैट इज सॉरी हम लोग का यहाँ पे सोडियम मेटल है, दैट इज हाईली रिएक्टिव, इट विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम हियर, राइट, हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस करेगा. सो आफ्टर डिस्प्लेसिंग हाइड्रोजन इट विल फॉर्म NaCl, जो कि एक सॉल्ट है हम लोग का. सो अगेन इस स्टेट विल बी एक्वस. आफ्टर दैट दिस हाइड्रोजन विल कंबाइन विद दिस OH एंड इट विल फॉर्म H2O एंड विद द कि वाटर है भाई तो लिक्विड स्टेट होगा. सो देखो अब यहाँ से देखा जाए हम लोग को, तो वन थिंग वी व्हाट आई कैन से ओवर दिस राइट नाउ कि लाइक जब कभी भी कोई एसिड आपका बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, टू थिंग्स विल ऑब्टेन, सॉल्ट एंड वाटर. अगेन आई एम रिपीटिंग, टू थिंग्स विल ऑब्टेन, सॉल्ट एंड वाटर. यही एक्चुअली हमारा थर्ड प्रॉपर्टी है. इट डज मीन, कैसे लिख सकते हो इसको आप, ऐसे लिखना कि व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ एनी बेस, राइट, इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. याद रखना, it will form salt and water. There is an acid, this acid has reacted with base and base के साथ रिएक्ट करके इसने क्या बनाया, salt and water का फॉर्मेशन किया. अब देखो यहाँ से salt and water बना. इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट क्या हमें लर्न करना है यहाँ पे इस चीज देखो, salt यहाँ पे जो बना, दिस salt आपका इट्स नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, सो इट डज मीन इट्स न्यूट्रल इन नेचर, right, it's a neutral in nature. याद रखना, it's a neutral in nature, therefore we will say that this is a type of reaction called as a neutralization reaction. We will call it as a neutralization reaction. ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. अब इतना तो आप भी पढ़ के रखे होगे, सोचोगे नया क्या है. देखो एक नया चीज आपको बताता हूँ. क्वेश्चन में अगर इससे आता है बेटा कि नेचर क्या है इस रिएक्शन का, आई एम डैम श्योर दैट एटलीस्ट 50% ऑफ यू विल डू दिस मिस्टेक. आप सब ये लिखोगे न्यूट्रलाइजेशन, बट ये आंसर सही नहीं है. इफ दिस इज बीइंग आस्क्ड इस रिएक्शन का नेचर क्या है, सो फॉर दैट नेचर यू विल हैव टू राइट दैट दिस रिएक्शन इज ऑफ द नेचर एक्सोथर्मिक इन नेचर. याद रखिएगा, दिस इज द राइट आंसर. इस नेचर का रिएक्शन का नेचर याद रखिएगा बेटा, इट इज योर एक्सोथर्मिक इन नेचर. इट डज मीन जब भी कभी कोई एसिड या बेस के साथ रिएक्शन करेगा, सो इट विल बी योर एक्सोथर्मिक इन नेचर. द सेम आई हैव राइट नाउ इन द क्लास एज वेल. ऑफ कोर्स हियर इज नॉट अ लैबोरेटरी, सो लाइक एज यूजुअल आई डू इन द क्लास, यहाँ नहीं हो सकता, बट हाँ कहते हैं ना वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहाँ चाह है वहाँ राह है. ठीक है, तो मैंने भी कुछ चीज़ें ऐसे गेस किया घर से कि इससे हेल्प से मैं नॉर्मल ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाता हूँ यहाँ पे, तो उसी तरीके से आपको भी समझाने की कोशिश करता हूँ. फॉर दैट आई हैव अ बीकर एंड दिस बीकर आई एम टेकिंग दिस वाटर, राइट, आई हैव टेकन वाटर. Then after I am just adding one lemon. We all know that lemon, that's a sorrent, is acidic in nature. And before that, one thing let me tell you. So if I'm just just mixing this lemon over here, so you all tell me what exactly the process right now I am doing. Okay, so yes, I am telling you right now what process is this. Is called a dilution of an acid, right? There's a acid हमारे लेमन में था, हमने वाटर इसमें मिक्स किया, या कह लो वाटर में मिक्स किया, तो इससे डाइल्यूशन याद रखना, इसको हम लोग डाइल्यूशन कहते हैं. सो नाउ व्हाट आई एम डूइंग दैट, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन विद यू दिस थिंग इन द क्लास. लाइक चूना जो नॉर्मल हमारे मार्केट में मिलता है, लोकल पान शॉप पे हमको मिलता है, दैट आई हैव कैरीड इट राइट नाउ. सो व्हाट इज देयर, व्हाट्स द फॉर्मूला इट इज देयर, there's a normal that you the tuna that is available in our local pan shop. What's the formula of it is, it contains CaOH whole twice, that is a calcium hydroxide which is basic in nature. अभी मैं रिएक्शन भी लिख के आपको दिखाऊंगा, basic in nature. So what will happen if I'm adding some amount of, not that much, but at least some amount of, so what will happen, yes of course this reaction will not be of exothermic in nature, because यहाँ पे जो citric acid है that is not your highly that's a strong acid नहीं है, but yes this is a weak acid in nature. So therefore again the reaction जो यहाँ पे हुआ, the type of reaction that has taken place just right now, it is of the nature exothermic, little bit exothermic, not that much because I can feel. And then after type of reaction आपका ये क्या हुआ, ये neutralization reaction
याद रखना, एक सिंपल सा एग्जांपल दैट आई हैव कैरीड राइट नाउ टू ऑल टीच, ठीक है। तो याद रखना इस चीज को, और एक और रिएक्शन इस पर लिख के बताते हैं आपको, देन आफ्टर दिस टॉपिक विल बी ओवर। लाइक सिंस आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसी के एग्जांपल से आपको समझाता हूं। सो आई हैव टेकन ओवर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH whole twice, that is basic in nature, aqueous state will be here, and then after what I have taken any acid, let's suppose this time I am taking example of acid H2SO4. So what will happen, calcium being highly reactive इसको displace कर देगा and it will form calcium sulfate along with वाटर दैट इज H2O। याद रखना एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज ए न्यूट्रलाइजेशन, इट्स नेचर विल बी एक्सोथर्मिक। और डिस्कस करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी जो कि लास्ट होगा, एसिड और बेस की प्रॉपर्टी, ठीक है। फोर्थ वन प्रॉपर्टी आई डिस्कस करते हैं। अगेन नो एनी डायरेक्ट फॉर्मूला डेफिनेशन, और लिखते हैं पहले। आई हैव टेकन ओवर MgO, दिस इज कॉल्ड एज ए मेटालिक ऑक्साइड, ठीक है। इट रिएक्ट्स विद एनी एसिड, HCl हमने एसिड लिया, स्टेट विल बी एक्वस इन नेचर। सो व्हाट विल हैपन, सी व्हाट विल हैपन, आप देखना यहाँ से क्या होगा। अगेन मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव, ऐसे आप याद कर रखना, इट विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन एंड इट विल फॉर्म MgCl2, राइट। इट विल फॉर्म MgCl2, स्टेट विल बी एक्वस क्योंकि सॉल्ट है हम लोग का ये, और हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, वी नो दैट इट विल फॉर्म वाटर दैट इज ए लिक्विड स्टेट। सो देखो व्हाट कैन आई से दैट कि व्हेन एवर एनी मेटालिक ऑक्साइड, ये देखो मेटल का है, ऑक्सीजन लगा है, इट्स अ मेटालिक ऑक्साइड। सो व्हेन एवर एनी मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ एसिड इट विल गिव सॉल्ट एंड वाटर, फिर से वो क्या देगा आपका, सॉल्ट एंड वाटर। जस्ट इसी के ऊपर देखो अभी हमने यहाँ पे लिखा है कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट एंड वाटर बनेंगे, और ऑलरेडी आपको एसिड यहाँ पे दिख रहा है। It does mean the magnesium oxide that's written over here, its nature is a basic. Its nature is a basic. फिर से बताता हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। एसिड और बेस का रिएक्शन करने पे हमें क्या मिलता है, सॉल्ट एंड वाटर, हमने थर्ड प्रॉपर्टी में पढ़ा है। फोर्थ वन हमने क्या किया, किसी मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्शन कराया, वी हैव फाउंड दैट इज अ सॉल्ट एंड वाटर। सो इट डज मीन एसिड तो पहले से अगर प्रेजेंट है तो दूसरा सब्सटेंस यहाँ पे क्या होना चाहिए हम लोग का, बेस होना चाहिए, सॉरी बेस होना चाहिए। सो यस, फ्रॉम दिस पॉइंट वी कैन राइट, एक लाइन हम यहाँ से लिख सकते हैं, ऑल मेटेलिक ऑक्साइड, ऑल मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। जितने मेटालिक ऑक्साइड हैं सभी आपके बेसिक इन नेचर होते हैं, याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। अब यहाँ पे दो तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लिखता हूँ, फॉर दैट यू हैव टू डू एज अ होमवर्क का टास्क आप कह सकते हो। आई एम राइटिंग हियर CaCO3 व्हेन इट रिएक्ट विथ HCl व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, एंड देन आफ्टर इफ देयर इज आई एम राइटिंग Cu copper and reacts with H2SO4, what will happen in both the cases, do let me in the comment section so that I can know कि आपको कितनी प्रॉपर्टी समझ में आई हैं। ओके, आओ अब डिस्कस करते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस के बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। लेट अस डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, एंड अगेन दैट्स अ केमिकल प्रॉपर्टी नॉट फिजिकल प्रॉपर्टी। द सेम वे आई डिस्कस अबाउट लाइक इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, आई टुक अ मेटल, द सेम आई एम डूइंग हियर, एल्युमिनियम मेटल हमने यहाँ पे लिया, एंड इट इज being made to react with any base. So common example of base NaOH, we all know that it is being made to react with the NaOH, again its state will be aqueous. So what the product that we will obtain here, थोड़ा सा different होगा यहाँ पे product, it will form NaAlO2 with the evolution of hydrogen gas. This is the same, ये आपका यहाँ पे सेम रहने वाला है कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। एंड हाउ वी आर गोइंग टू टेस्ट, वी आर गोइंग टू टेस्ट लाइक पॉप साउंड, यहाँ पे आपको मिलेगा। यहाँ पे व्हाट्स द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ये देखो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, दिस मस्ट बी रिमेंबर बाय यू, इज कॉल्ड एज सोडियम एल्यूमिनेट। दिस इज योर सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है, याद रखना ये सोडियम एल्यूमिनेट यहाँ पे आपको प्रोडक्ट देगा, दिस इज सोडियम एल्यूमिनेट। अगेन ये एक सॉल्ट ही है, ऐसा कोई नहीं कोई डिफरेंट टाइप का कंपाउंड है, दिस इज ऑल्सो योर सॉल्ट ही है, ये भी आपका एक सॉल्ट ही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेकंड वन, सॉरी एक और रिएक्शन देखते हैं यहाँ पे। लेट अस सपोज आई एम टेकिंग ओवर हियर राइट नाउ, अब क्या करते हैं यहाँ पे, आई एम टेकिंग एनी अनदर मेटल, लेट्स से जिंक ले रहा हूँ, अगेन मेटल है सॉलिड स्टेट नेचर, बेस सेम रखते हैं अभी हम लोग NaOH, व्हाट इट विल फॉर्म, रिएक्ट विथ, सो अगेन व्हाट इट विल फॉर्म, सॉल्ट विद एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो कौन सा सॉल्ट बनेगा, बट ये इंपॉर्टेंट है देखो, नाउ दिस टाइम इट विल फॉर्म Na2
ZnO2, राइट, विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। सो गैस इवॉल्व कर रहा है तो इस अपवर्ड सिंबल लगाओगे आप, ठीक है, ये हमें याद रखना हमेशा। सो याद रखना द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट कि व्हेनेवर एनी बेस रिएक्ट्स विथ, आई थिंक आई एम शुड राइट ओवर हियर कि हम लोग का ये लेट से बेस है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, किसी मेटल के साथ, टू थिंग्स इट विल फॉर्म अगेन, व्हाट इट विल फॉर्म सॉल्ट विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। मैं H2 लिख रहा हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन पूरा आप लिखिएगा ऐसे। सो दिस वाज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ बेस, ठीक है। आओ सेकंड प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ बेस? आई गेस ये उतना भी डिफिकल्ट नहीं है आपका। सेकंड प्रॉपर्टी विल बी द सेम, लाइक व्हाट इज द सेम आई एम सेइंग कि लेट अस सपोज आई हैव टेकन एनी बेस पढ़े तो चलो बेस का ही एग्जांपल लेते हैं, NaOH, एंड आई एम टेकिंग ओवर देन एनी एसिड HCl, लेट्स से HCl एसिड लिया हमने, ठीक है, aqueous state, it will react with it to form again salt and water. We know that what salt will be NaCl along with the water. State आप प्रॉपर लिखोगे, कई बार हम लोग लिख चुके हैं इसको, ठीक। सो सेम चीज़ है। द सेकेंड आई गेस सेकेंड लास्ट प्रॉपर्टी जो एसिड का था वही सेकेंड प्रॉपर्टी आपका बेस का है कि उसमें हमने पढ़ा था एसिड रिएक्ट विद बेस। दिस टाइम थोड़ा सा लाइन चेंज कर देते हैं, लाइक व्हेन बेस रिएक्ट विद एसिड इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। और यहाँ पे एक एग्जाम्पल डिफरेंट कर देते हैं, अदरवाइज यू विल से दैट कि आप एक ही एग्जाम्पल बार बार लिख रहे हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल एक बार हम चेंज करते हैं। व्हाट एग्जाम्पल आई एम पिकिंग अप राइट नाउ, देखो एग्जाम्पल यहाँ पे चेंज करते हैं, कोई एक और दूसरा बेस लेते हैं। लेट अस सपोज आई एम टेकिंग हियर एज अ बेस NH4OH जो कि हमारा वीक बेस है, याद रखना। एंड द एसिड दैट आई एम टेकिंग राइट नाउ हियर, लेट्स से इफ एसिड आई एम टेकिंग हियर लेट्स से HCl, एसिड सेम रखते हैं, ठीक है, बेस हमने डिफरेंट कर दिया। सो व्हाट इट विल फॉर्म योर NH4Cl, NH4, देखो यहाँ से NH4Cl, ये हाइड्रोजन OH के साथ मिल जाएगा एंड इट विल फॉर्म H2O। सो इट डज मीन सॉल्ट एंड वाटर। याद रखिएगा दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एंड यस इट्स अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेचर विल बी एक्सोथर्मिक इन नेचर, राइट। Out. So now let us discuss the third property, ठीक है, that will be the second last property of base. So in third property what we are doing, let us suppose I have taken any base, this time I have taken another example of base COH whole twice, state will be aqueous, through which what we are doing, we are passing carbon dioxide, right? So carbon dioxide is a gaseous in nature, so I must write over it's a gaseous in nature. So what will happen after this, you will see that there will be the formation of salt and water. देखो there will be the formation of salt, that is a CaCO3, सॉल्ट बनेगा, एक्वस नेचर लिख लेते हैं यहाँ पे, एंड वाटर से लिक्विड स्टेट लिख लेते हैं, राइट। याद रखना, तो जब कभी भी कोई बेस आपका किसी नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ से, इट्स अ कार्बन डाइऑक्साइड, नॉन मेटल, इट्स अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। सो व्हेन एवर एनी बेस रिएक्ट्स विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। और जस्ट अभी देखो, जस्ट इन द सेकंड रिएक्शन वी हैव अंडरस्टूड दिस थिंग कि जब कोई आपका कोई बेस किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, डज मीन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ पे भी मिल रहा है आपको सॉल्ट एंड वाटर, इट डज मीन द टाइप ऑफ रिएक्शन, ये जो आपका टाइप ऑफ रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन, नॉट टाइप ऑफ रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन, बट इसका जो नेचर होगा, ठीक है, दिस नेचर बिकॉज इट्स ऑलरेडी बेस इन नेचर, सो इट डज मीन ऑफ कोर्स जो इसका नेचर है CO2 का नेचर, दैट मस्ट बी एसिडिक इन नेचर। सो हियर आई कैन से दैट कि जितने भी नॉन मेटल हैं उनके ऑक्साइड का जो नेचर होगा दैट विल बी योर एसिडिक इन नेचर। ये आप जरूर से लिख लेना, लाइक आई एम राइटिंग हियर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। लाइक यू रिमेंबर, कुछ देर पहले अभी हमने डिस्कस किया था कि जितने मेटालिक ऑक्साइड होते हैं उनका बेसिक नेचर होता है, बट नॉन मेटालिक ऑक्साइड का नेचर जो होगा वो एसिडिक होगा, याद रखना। दिस वाज द थर्ड प्रॉपर्टी। कैसे याद रखोगे? व्हेन बेसिस रिएक्ट विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, राइट। याद रखना इस चीज को। दिस क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड यू कि इसमें pH लेवल कैसे बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट विल डिस्कस लेटर ऑन। टॉकिंग अबाउट द फोर्थ वन एंड वेरी लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ बेस, दिस प्रॉपर्टी माइट नॉट बी गिवन इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, बट स्टिल वी आर कवरिंग इट, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, किसी एक मेटल का सॉल्ट सोल्यूशन लेते हैं हम लोग। लेट से NaOH से ही पहले रिएक्शन करा रहे हैं, बेस है हम लोग का, किसी मेटल सॉल्ट सोल्यूशन के साथ FeCl3 के साथ लेट से हमने रिएक्शन कराया, या बेस चेंज ही कर देते हैं। दिस टाइम आई एम टेकिंग बेस एग्जांपल NH4OH बिकॉज नंबर ऑफ टाइम्स टेकिंग NaOH, ओके। तो व्हाट विल हैपन, इट विल फॉर्म हियर FeOH होल थ्राइस, Fe फेरिक हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हैं, एंड देयर विल द फॉर्मेशन ऑफ योर NH4Cl जिसको कि हम लोग सॉल्ट कहते हैं, याद रखना इस चीज को, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, व्हेन एनी बेस रिएक्ट्स विथ
मेटेलिक सॉल्ट, तो उसी मेटल का वो देखो हाइड्रोक्साइड बनाएगा। देखो आयरन का ही सॉल्ट था यहाँ पे फेरिक क्लोराइड, उसी आयरन का देखो हाइड्रोक्साइड यहाँ पे बना और दूसरा सॉल्ट NH4Cl आपका। ये बेस की एक फोर्थ प्रॉपर्टी है जो कि एडिशनल प्रॉपर्टी यू कैन से दैट, राइट। सो आई होप दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो क्लियर टू यू। सो दीज ऑल वर द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ बेस एंड अर्लियर वी डिस्कस अबाउट द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। सो आई होप ये सभी प्रॉपर्टीज आपको क्लियर है, बट स्टिल इन केस यू हैव एनी डाउट डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, श्योर आई विल रिप्लाई और मेक अप टेक अ प्रॉपर necessary steps so that how can resolve your doubts for that questions also। चलो अभी काम करते हैं। अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू कि द PDF नोट्स ऑफ दिस चैप्टर इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज जाओ वहाँ से आप देखो, इसको डाउनलोड करो, दैट्स विल बी वेरी इजी एंड हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।